Uh, Good afternoon, friends. A very warm welcome to you on behalf of People Bridge. And I have with me Mr. Devendra Thakuralji. He's a very nice and humble human being. And what I have found is that whatever. Just to give you a little background, when the if you think back and go back to what was happening in January and February, we all were preparing for something very different in our life. A lot of us were planning for our holiday destination. Some people were looking forward to increments. We were making plans for how we will expand our business, what will happen in the new financial year. Everybody was busy trying to do something, and all of a sudden we have found that it's like you have got a chessboard and somebody has come and thrown away the entire chessboard or carom board, whatever you may call it, of your life. And what we are struggling with right now is issues which are very different, very different. A lot of people who had good stable jobs, in companies like Uber, Ola, which were really the cream of the companies, all of a sudden they are out of jobs, and they don't know how to manage. And everything in life has turned totally upside down. And I was just before starting the call, I was discussing with even getting something like haircut looks like a luxury. So yes, and we always wonder, what exactly have we done, or what exactly has happened to this world that all of a sudden so many things have changed. So I would request, Devendra ji to just, explain a bit about it. See, astrology is not something, a lot of people associate with a lot of, negativity also, that, but like everything, it is a science. And if you believe in it, it will work for you. Let me put it that way. It is also a matter of your belief. If you believe in it, it will work for you. If you don't believe, I mean, things will still happen, but only thing is you will be left wondering why it has happened. So with this note, I will request Devendra ji to take over and give a little background to whatever I have said. He can add to that, and then you can ask your questions, and he will try to answer the best way possible. But please, due to paucity of time, we would limit the questions to one per person, and that's it. So over to you, Devendra ji. Yeah, while he comes in, Amitabh, you were very right. Today, even a haircut seems a luxury. Yeah. It's not business as usual. While many of us are calling life as business as usual, actually it is Yes. not. No, it is not. It is very different, Okay, so before we wait for Devendra ji to join, may I request the audience actually what brings you here? So maybe, and what has been your experience being a part of this topsy-turvy world? Geja ji, we can start with you. Amitabh ji, yes, we can surely introduce ourselves. We are more interested to know about yourself also, actually. Okay, I'm Girija. We are basically. I'm sorry, Girija ji, sorry. Devendra ji, आगे. No, Geja ji, you can complete and then we will come back to Devendra ji, no problem. Should I start? Yeah, please. Yeah, actually, I am into HR from last 19 years. My name is Girija. My company name is Link HR Solution Private Limited. Okay. We are into hire to fire. Like okay. hiring till the exit of the employee, we are taking care of the entire process. Okay. What make me to come to this? I have already taken some services of Devendra ji. Okay. And he personally feels it works. Yes. तो मैं हर किसी को सजेस्ट भी करती हूँ यार, अगर एनी प्रॉब्लम एक बार देवेंद्र जी से बात करके देख लो. आई होप ही विल सॉल्व योर क्वेरीज. मैं कभी किसी को ये नहीं कहती हूँ नहीं आपको लेना है, बट रेमेडीज वर्क्स. तो दैट इज द मेन रीजन कि मैं यहाँ हूँ. Okay. So, Devendra ji, we were just asking persons to share their experience and what brought them to this, what brought them here. So we'll hand it over to you and you can start now. मेरा नाम देवेंद्र ठुकराल है. आपको अमिताभ जी ने बता दिया होगा. मैं पिछले 19 साल से ज्योतिष और वास्तु की फील्ड में काम कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट 50,000 के करीब अभी हॉरोस्कोप में देख चुका हूँ. और उसमें मैंने जो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है वो थोड़ा सा बताने. जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर हम उनको मानते हैं.
कि उनके हम सिखाते हैं बच्चों को पैरों को छूना। कितने पेरेंट्स मेरे को बताएंगे कोई कि कितने लोगों के पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चों को पैर छूना चाहिए, सिर्फ हाथ वेव्स हाथ से बंद कर देना। करेक्ट। तो इसमें 3 प्लैनेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब हम झुकना सिखाते हैं बच्चे को तो उसका सैटर्न अच्छा होता है। जब वो झुकने के बाद हमारी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो सैटर्न खुश होता है। जब झुकना सिखा रहे हैं हम तो मतलब हर जगह पे सरेंडर करना सिखा रहे हैं, बड़े बुजुर्गों का रिस्पेक्ट लेना चाह रहे हैं। रिस्पेक्ट का मतलब होता है जुपिटर, मतलब हर प्लेनेट को उसमें डीपली इन्वॉल्व किया गया हमारे संस्कारों में कि वो लगता ही नहीं कि एस्ट्रोलॉजी से बाहर है हम। अब लेकिन एस्ट्रोलॉजी वर्ड ऐसा भारी है कि लोगों को लगता है पता नहीं ज्योतिष क्या है, एक डराने का एक सिस्टम है कि ये वाला प्लेनेट ऐसा होगा, ये होगा। हम लोग बिलीव नहीं करते बहुत जल्दी से उनके ऊपर कि ये साइंस नहीं लगती है, लगता है कि ये बेवकूफ बनाने का एक धंधा है। जब भी हम जाएंगे इनके पास ये हमें डराएंगे और हमें दांत टोने टोट के करवाएंगे और पूजा पाठ करवाएंगे, जो हमारा काम नहीं है। तो ज्योतिष जो है उसमें ये स्टार्ट हमारे घर से होती है, हमारे बुजुर्ग हमें समझाते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। अब जब हम हमारी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो वो हमारे को फेम की तरफ भी लेके जाती है। जितना हम झुकेंगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जितना बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी उतना हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ता है। डिटर्मिनेशन जो है वो उसको भी हम प्लेनेट से इन्वॉल्व करते हैं, उसको हम केतु से देखते हैं। तो जब हम हमारा जो थाई के ऊपर वाला हिस्सा है वो उसको चंद्रमा से लेते हैं हम, मतलब उसको हम हॉरोस्कोप में 9th हाउस से देखते हैं। जो भी ज्यादा आकड़ जिसके अंदर ज्यादा होगी उसका भाग्य कमजोर होगा। ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम ही है ये, मतलब जितना आप झुकते जाएंगे आपका अपने आप भाग्य को बड़ा कर सकते हैं, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आप लेके आएंगे। कोई भी ग्रह होता है, किसी को अच्छा मिलता है, किसी को अच्छा नहीं मिलता, सबका अलग अलग चार्ट होता है, किसी एक के सिस्टम से नहीं होता कि सबका एक जैसा ही हो। जैसे जुपिटर जो है, हम सबसे पहले आज थर्सडे है तो जुपिटर की बात करेंगे सबसे पहले। तो जुपिटर जो होता है वो हमें सिखाता है जिम्मेदारी। जितने हम जिम्मेदार बनेंगे हमारी याददाश्त, जिम्मेदार मतलब हम कोई भी काम हमें कोई देता है हम वो करते हैं, टाइमली कर देते हैं, तो हमारा जुपिटर अच्छा है। हम किसी को बच्चे को अपने बोलते हैं कि कोई रिश्तेदार आएगा तो अपने आप पैर छू रहा है तो इट मींस उसका जुपिटर बहुत अच्छा है, वो जिंदगी में अपने आप राइज करेगा। और अगर हम उसको बोल रहे हैं कि बेटा बड़े आए हैं, चाचा जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं या बड़े पापा आए हैं, पैर छू, तो बोलना पड़े तो इसका मतलब बृहस्पति कहीं पर थोड़ा सा वीक है, उसको ठीक करने की जरूरत है। इसमें किसी ज्यादा उपाय की जरूरत नहीं है, मतलब हमें सिस्टम ऐसा क्रिएट करना होता है कि वो प्लेनेट अपने आप ठीक होना शुरू हो जाए। जब प्लेनेट अच्छा होता है तो उसका रिजल्ट पूरी लाइफ में बहुत अच्छा मिलता है। जैसे हमारा कोई हम किसी काम को करते हैं उसमें हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है, तो हमारा जुपिटर जो है वो प्रोफेशनल है, उसमें मतलब आ गया, तो इसका मतलब वो सबके लिए जुपिटर जो है ना अलग अलग रोल प्ले कर रहा है उनके प्लेनेट के हिसाब से। किसी का जो जुपिटर है वो कहता है कि आप छुपा के करो कुछ चीजें, बताओ मत किसी को। तो वो जो बताना और छुपाना है ना वो सबका अलग अलग है। एक ही हम सोचे ना कि सभी लोग अच्छे हो जाएं तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सबके चार्ट अलग अलग होते हैं। जिसके चार्ट में सीधे से फायदा मिलेगा तो उसको सीधे से मिल जाएगा फायदा, और कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल मतलब हर काम को, जिम्मेदारी वाले काम को भी करना है ना तो वो उसमें अपना स्वाद ढूंढना है, तो उसमें जुपिटर वीक करेगा ही, वो होगा ही उसका जुपिटर। वो हमें जब हमारे को बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना अपने भाग्य की, जब हमें लगता है कि इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है, उस टाइम वो जुपिटर हमें हेल्प नहीं करता। इसीलिए लगता है कि कुछ लोग हम लास्ट मोमेंट पे हम फेलियर हो जाते हैं, हमारा सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लास्ट मोमेंट पे हमारे को चीजें होते होते रह जाती हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ कहीं जुड़ा रहता है, वो हमारे सिस्टम में ही होता है, उस सिस्टम से बाहर निकल नहीं पाते। उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के ना बहुत सारे तरीके बताए गए। मतलब ये जुपिटर जो है, जिसका बहुत अच्छा जुपिटर होता है वो जस्टिस की तरफ चलता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का गलत नहीं चाहता। सबका सिस्टम जो है ना जुपिटर का बिल्कुल सॉलिड होता है। मतलब जैसे हमने कोई होता है ना कि हमें किसी चीज का आदत पड़ गई है, उसको छोड़ना है, छोड़ नहीं पा रहे हम, वो छोड़ नहीं पाना का मतलब है कि जुपिटर वीक है उसका। कोई अगर वो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो उसकी जगह पर वो चॉकलेट खाना शुरू हो जाता है या चिंगम खाना शुरू हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए उसको
इट मीन्स कि उसका जुपिटर वीक है। अगर इसको ठीक करने का मतलब ये दे से नो टू टेम्पटेशन, भाई ये मना कर सकते हैं, कोई भी चीज छोड़नी है एक दिन झटके से छोड़ सकते हैं। ये उनका जुपिटर बहुत अच्छा होता है। शरीर में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, आपने देखा होगा, पता नहीं चलता कैसे हो रहा है, ये भी जुपिटर वीक की निशानी है। ज्यादा फैट होना, ज्यादा मतलब बार बार पतले होके मोटे हो जाना, ये भी जुपिटर की वीक होने की परेशानी होती है। अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट चलती है, अगर बुध की इन्वॉल्वमेंट आ गई तो वो डाउन नहीं होने देगा, पतला ही नहीं होने देगा, वो मोटा ही रहने देगा। इसके लिए हम एडवाइस देते हैं कि जिम्मेदारी से भागो नहीं, अपनी जिम्मेदारी जो है पूरी करो, आराम से करो। और हल्दी या केसर का टिक्का दोनों आईब्रोज के बीच में लगाओ। ये जगह आद्या चक्र होता है, यहाँ पर आप लगाने से एक तो नजर से बचते हैं, कभी नजर नहीं लगेगी, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। आप किसी से भी मिलेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा हमारे को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं। इंट्यूशन वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। आद्य चक्र पर केसर मतलब हल्दी या केसर जुपिटर का बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। इसको यूज करने से आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा होता है। और जब ये अच्छा होता है तो आपको जुपिटर का जैसे स्टोन पहनते हैं, पुखराज हो गया, टोपाज पहनते हैं लोग, ये स्टोन पहनने की भी जरूरत नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि डेली नया टीका लगा रहे हो आप, डेली नया रिजल्ट देगा आपको। घर में सब्जी बनाते टाइम थोड़ी सी हल्दी ज्यादा डालो, वो भी जुपिटर स्ट्रॉन्ग करता है। ये जुपिटर का, अगर आपका कुंडली में गुरु जुपिटर बहुत अच्छा है तो अपने किसी भी इंसान को फ्री एडवाइस कभी ना दे। एडवाइस जो होती है वो भी जुपिटर से रिलेटेड होती है। हम किसी से एडवाइस लेते हैं तो अगर हमारा प्लैनेट अच्छा है और हमने उससे एडवाइस ली और उसको इस बदले में कुछ चार्ज नहीं दिया या उसको कुछ रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया तो हमारा जुपिटर वीक होना स्टार्ट होता है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका, कोई चॉकलेट दे दो, कुछ रिटर्न गिफ्ट दे दो अगर पैसे नहीं दे सकते, ठीक है, तो वो आपको कंट्रोल होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के ना पीछे सिर की चोटी वाली जगह पे बाल नहीं होते, ये भी जुपिटर वीक होने की निशानी होती है। जिनका जुपिटर वीक होता है वो गले में हमेशा गोल दाने की माला जरूर पहने होंगे। मैंने बहुत सारे पंडितों को देखा है माला पहनी होती है और यहाँ से गंजे होते हैं, जुपिटर का काम कर रहे हैं लेकिन जुपिटर वीक है उनका, उनको पता ही नहीं है। जुपिटर स्ट्रॉन्ग होते ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा से हम देखते हैं मन की शांति का साथ, प्रॉपर्टी का सुख। ये डिस्टर्ब होगा तो डिप्रेशन आएगा, कम डिस्टर्ब होगा तो टेंशन के टाइम में थोड़ा ट्रैवल करते ही रिलैक्स मिलेगा। जैसे आप अपने घर में ही देखें मेंबर को, किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए या हमें कभी स्ट्रेस हो जाए तो कुछ लोगों को ना थोड़ा सा रूम से बाहर निकल के पार्क में टहले, निकल के गाड़ी गुस्से में निकल गए, गाड़ी लेके निकल गए, तो आपको उसको रिलैक्स हो जाता है। तो इट मीन्स उसका रिलैक्स चंद्रमा थोड़ा सा बेटर है, वहां पे थोड़ा रिलैक्सेशन है। जब भी फुल मून, जिस दिन फुल मून होता है उसी दिन मेंटल हॉस्पिटल में केसेस ज्यादा आते हैं। ये मेरी रिसर्च है, मैंने जाके उनके रजिस्टर खंगाले हैं और खूब सारे रजिस्टर देखे हैं। जब फुल मून होता है उन दिनों पे एंट्रीज ज्यादा आई है लोगों की। तो ये सारी चीजें जो है, खांसी जुकाम होता है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, ये भी चंद्रमा वीक की निशानी है। हम अपनी माँ की सेवा नहीं कर रहे, हम अपने व्हीकल को चमका नहीं रहे, साफ नहीं रख रहे, गंदगी है तो पड़ी है, तो अब भी हम चंद्रमा वीक कर रहे हैं अपना। और अगर इमोशनल ज्यादा है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 2 आ जाता है तो आप अटेंशन सीकर भी हो जाते हो। चंद्रमा वाले लोग जो होते हैं वो कभी भी आगे बढ़ के नहीं चलते हैं, वो एक स्टेप पीछे ही चलते हैं। उनको लाइमलाइट में आने का शौक नहीं होता, वो पीछे ही चलेंगे। मतलब उसको हम बोलते हैं क्वीन की तरह होती है, वो किंग नहीं बनती कभी, क्वीन की तरह पीछे रहती है। वो लोगों को आगे बढ़ाते जाएंगे लेकिन खुद पीछे ही रहेंगे, उनको पीछे रह के मजा आता है। जैसे फिल्म में होता है ना, डायरेक्टर पीछे होता है, एक्टर आगे होता है, तो वो डायरेक्टर वाले रोल ज्यादा क्रिएटिविटी होती है ना, क्योंकि चंद्रमा का जिसका अच्छा होता है उसकी क्रिएटिविटी बहुत होगी। किसी घर में छोटे बच्चों के अगर किसी का चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत ड्राइंग का शौकीन है तो उसको और देखो वो कहाँ पर वो कर सकते हो, उसको क्रिएटिविटी वाला लोकेशन ढूंढो उसकी, वो बहुत अच्छा एक पॉइंट होता है जिससे हम पकड़ सकते हैं कि बच्चे में क्रिएटिविटी कैसे जगह जगह डाल के देखो, डांस में, म्यूजिक में, जहां पर उसका सेटल बैठे उसको बिजी करो। जितना बिजी करोगे उसकी क्रिएटिविटी और बढ़ेगी। इसमें चंद्रमा मन का भी कारक होता है, मतलब फाइनेंस हम चंद्रमा से देखते हैं, जुपिटर और चंद्रमा से देखते हैं। तो अगर जुपिटर को आपने कंट्रोल कर लिया
और चंद्रमा को अच्छा कर लिया। चंद्रमा को अच्छा करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हमारे घर में मदर है या मदर से के एज की लेडीज हैं जिनके बाल ज्यादा बिल्कुल कलर नहीं करती हैं, जो सफेद बाल है, वो प्योर मून होता है, उनकी सेवा करो। नहीं है आसपास तो ओल्ड होम्स होते हैं, वहां जाइए, वहां उनकी सेवा कीजिए, आपका चंद्रमा अच्छा होगा। फाइनेंस अगर कहीं पेमेंट फंसी हुई, आप बिजनेस ओनर से हैं, अगर आपकी पेमेंट कहीं रुक रही है बार बार, सिर्फ आप ओल्ड होम्स में जाके वहां एक बार सेवा तो करके आओ, देखो कैसे आपकी पेमेंट्स खुलती हैं। मतलब ऑरा है ये। जैसे कोई कहता है ना कि हमें किसी ने कहा कि डॉगी को कुछ खिलाओ, डॉगी को खिलाने से कुछ नहीं होता है, उसके ऑरा मंडल से, हमारे ऑरा मंडल में जो सिस्टम डेवलप होता है ना, उससे रिजल्ट आता है। मतलब उसको बार बार खिलाना पड़ेगा और उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट आएगा। आप खिला छोड़ के आगे खाने के लिए और निकल गए तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। रिजल्ट तब भी आएगा जब उसके ऑरा में आप आएंगे। तो ऐसी जब आप बुजुर्गों के ओल्ड होम्स में जाते हैं या घर में माँ है आपकी, उसके साथ टाइम बिताओ, उनके साथ डिस्कशन करो, बातचीत करो, तो आपका जो ऑरा मंडल है ना वो क्रैक होगा, आपकी नेगेटिविटी बाहर आएगी। नेगेटिविटी हमारा जो सिस्टम होता है ना, जब कहते हैं कि पेमेंट्स नहीं आ रही हैं तो या डिप्रेशन बहुत आ रहा है, तो हमारा चंद्रमा जो है वो क्रैक नहीं हो रहा, डिस्टर्ब ही है, वो ठीक नहीं हो रहा है। इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको हमें खुद ही समझना होता है ना। आजकल देखो बच्चे ना कमरे के अंदर रहते हैं, बाहर ही निकलते हैं, वो डिप्रेशन आपको पता ही नहीं चलने देते, अंदर ही अंदर डिप्रेशन होता है, पता नहीं चलता। तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम दान करवा के रिलैक्स करते हैं, होरोस्कोप टू होरोस्कोप डिसाइड करते हैं हम। ऐसा नहीं कि कोई भी उपाय सबके लिए एक जैसा काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो प्लेनेट की पोजीशन देखी जाती है, कहाँ पर प्लेनेट है, उसको कैसे वहां से निकाला जाए, उसको किधर से उसको रिलैक्स मिले, उसका ऑरा कैसे क्रैक करें। कभी हम नोटिस करते हैं कि मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो हमें रिलैक्स मिलता है, अजीब सा रिलैक्स मिलता है। नोटिस किया है किसी ने? ठीक है, तो उसमें क्यों, वो क्यों करता है, उसका रीजन ये है कि जब हम मंदिर में हर समय जोत जलती है, जब जोत जलती है ना तो वहाँ ऑक्सीजन खत्म होती है। जब हम लगातार जोत जलाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस एरिया में। हम अब बाहर से आते हैं मंदिर में जैसे ही, तो हमारा दिमाग शून्य हो जाता है, हम रिलैक्स होते हैं, ऑक्सीजन वहाँ पर कम है, हम उस ऑरा मंडल में फंस जाते हैं और पिछला सब भूल जाते हैं। और कुछ कलरफुल मूर्तियाँ होती हैं, खुली जगह होती है, पूजा पाठ की आवाजें आ रही होती हैं, तो वो सारी चीजें ना एकदम से हमारे ऑरा को क्रैक कर देती हैं, हमें रिलैक्स मिलता है। इसके लिए ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी में बताया गया कि घर में मंदिर हो ना तो कभी लगातार जोत नहीं जलानी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है घर में। पंडित लोग बोलते हैं कि पूजा करनी चाहिए, जोत जलानी चाहिए, अखंड ज्योति जलानी चाहिए। मैंने देखा है जहां जहां पर अखंड जोत ज्यादा जलती है ना, वहां पर मतलब 70% लोगों के घरों में मैंने सांस की प्रॉब्लम देखी। ये जो प्रॉब्लम मतलब इसके पीछे पूरी साइंस है, इसमें लगेंगे तो हमें आधा घंटा लग जाएगा, इस पे नहीं चलते, बहुत लंबी हो जाएगी स्टोरी। अब हम बात करते हैं मंगल की। मून की बात हो गई, अब मंगल की बात करते हैं। मंगल होता है एनर्जी। जैसे कभी आपने देखा होगा हम ट्रैवल करते हैं तो बस में कोई बंदा, हम बैग निकालते हैं ना, बैग हमारे बस में होता है, ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह पे सब बैग्स पड़े हुए हैं, उसको निकालने के लिए एक आदमी होता है जो गाड़ी से निकालता है, उसके साथ भी कोई आदमी खड़ा हो जाता है जो हेल्प करता है। मतलब वो उसका नेचर है कि ना लोगों की हेल्प करना, चलो जल्दी से हो जाएगा, या कोई परेशानी ना हो, कोई बुजुर्ग होगा उसको बैग पकड़ा देते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना हेल्पिंग नेचर वाला, इसको बोलते हैं इसका मंगल अच्छा है। ये नेचुरल सिग्निफिकेटर है, ये बताता है कि मंगल कैसे अच्छा होता है। मंगल में मतलब मंगल को हम ब्लड से भी लेते हैं, ब्लड में मतलब 21 ट्रिलियन रेड सेल्स होते हैं और 100 बिलियन व्हाइट सेल्स होते हैं। तो एक पूरी फौज है हमारे अंदर, हमारी एनर्जी है वो। मतलब कोई अगर सोचे ना कि हम अकेले, तो अकेले नहीं, हमारे पास पूरी फोर्स है जिसको हम हैंडल करते हैं। जब भी हम कंफ्यूज होते हैं तो ये भी अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाइट सेल रेड सेल्स, और फिर हमारे से ऐसी हरकतें हो जाती है कि हम अजीब से मतलब क्लियर नहीं बोल पाते या क्लियरली एक्शन नहीं कर पाते जो कर रहे होते हैं, अबर तबड़ हो जाती है, मतलब भगदड़ मच जाती है अंदर, तो बाहर भी वो शो हो जाती है, अपने टारगेट तक पहुंचने में दिक्कत करती है। जैसे अब मंगल पुलिस भी है, जैसे अभी लॉकडाउन से पहले कॉम्बिनेशन चल रहा था मंगल केतु का, जब शाहीन बाग से पहले की बात कर रहा हूँ, शाहीन बाग शुरू हुआ था उस टाइम मंगल केतु चल रहा था, मंगल डिस्टर्ब था केतु के साथ, तो पुलिस वाले कुछ कर नहीं पा रहे थे।
जैसे वो केतु अलग हुआ 23 मार्च को, उसके बाद शाहीन बाग खाली हो गया। मतलब केतु अलग होने से सूर्य को, मंगल को बल मिल गया, सॉलिड हो गया, स्ट्रांग हो गया। उसको किसी का प्लेनेट का ग्रहण नहीं मिला, हट गया वो, तो वो पावरफुल हो गया, वो डंडे चला रहा है। अब लॉकडाउन में भी उसने खूब डंडे चलाए। कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने पुलिस को मारा हो, ऐसा नहीं था, एक आध केस था, वो एक्सेप्शन है, वो चलता है। जिसको अब इसमें क्या था, मंगल से हम देखते हैं बोल्डनेस, एग्रेसिवनेस, कॉन्फिडेंस, करेज, एक्टिवनेस, ठीक है। जिसको मीठा ज्यादा अच्छा लगता है, मजे की बात बता रहा हूँ आपको, नोटिस करना अपने परिवार में, जिसको मीठा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उसका मंगल वीक है। मतलब मंगल मीठे की चीज है, और मीठा आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा खाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा खा रहे हो इट मीन्स कि मंगल वीक है आपका। और अगर नमक ज्यादा खा रहे हो तो आपका मंगल अच्छा है, सूर्य वीक है। ये बड़ी अजीब सा एक है कॉम्बिनेशन। अपने फैमिली में बच्चों को भी देख सकते हो, मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, जो जिसका नेचर है उसको रोक नहीं सकते आप। इसमें एक चीज और बड़ी अच्छी है, अगर लेडीज मीठा ज्यादा खाती होगी तो उनमें मेल के गुण जरूर होंगे, और अगर जेंट्स खट्टा ज्यादा खाते होंगे, जैसे गोलगप्पे वगैरह पापड़ी वगैरह ज्यादा खाते होंगे, तो उनके अंदर फीमेल से गुण जरूर होंगे। वो नोटिस करना, आपको मजा आने वाला है। और अच्छे पड़ोसी होना भी बताता है कि अच्छा मंगल बहुत अच्छा है आपका। मंगल को हम पड़ोसी से भी देखते हैं, तो हमारी एनर्जी, हमारा बोल्डनेस, हमारा करेज वाला सिस्टम, सारा जो सिस्टम है मंगल से देखते हैं। मंगल हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, मतलब हमारा मंगल खराब है और हम फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं, अच्छा फ्रेंड सर्कल बना लिया हमने, तो मंगल ऑटोमेटिक ठीक होने वाला है, उसकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी, वो दिखेगा। आपकी एनर्जी, जब भी आप फ्रेंड्स के पास जाओगे आपको लगेगा कि मैं परेशानी है ही नहीं कोई, तो उस टाइम अच्छे फ्रेंड्स मिलना भी चैलेंज होता है। अगर अच्छे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि मंगल ठीक होने की पोजीशन पे है, नेचुरल है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य मतलब, सूर्य का मतलब कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग होता है जिनका सूर्य बहुत अच्छा होता है। मतलब सूर्य वाले लोग बड़े से बड़े आदमी के आगे बिल्कुल शर्माएंगे नहीं, हेजिटेट नहीं करेंगे, सीधा जाके बात करेंगे। उनमें कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं होगा कि हेजिटेट करेंगे कि नहीं बड़ा आदमी इसको कैसे बात करूं, बिल्कुल सीधा जाएगा, नॉन स्टॉप। और सूर्य वाले लोग जो होते हैं वो बड़े स्पेशल होते हैं। अगर हम किसी फंक्शन में बैठे हैं और कोई सूर्य वाला आएगा तो वो पहले ही एंट्री करने से पहले ही लोकेशन सेट कर लेगा कि मैंने कहाँ बैठना है, और वो बड़े स्टाइल से आएगा और सबको इंप्रेशन डालता हुआ बैठेगा और चुपचाप सीधा सीट पे बैठेगा। उसकी बड़ी अच्छी पहचान है सूर्य वाले की। सूर्य मजबूत जिनका होता है, मतलब अट्रैक्टिव हो रहा होता है, अलग से नजर आएंगे आपको, सबकी निगाह बरबस जाएगी, अपने आप जाएगी, आपको लगेगा कि कोई स्पेशल जा रहा है। सूर्य मतलब राजा बोलते हैं उसको, किंग, किंग वाला नेचर होता है इसका। अगर वीक होने का जो सबसे पहला निशानी होती है सूर्य वीक की, सबसे पहले चश्मा लगना पक्का होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी पक्का। उसके बाद चिड़चिड़ापन जरूर होगा। कोई भी बात अगर उसको बता रहा है कोई, तो उसको पूरी बात सुनेगा नहीं, बीच में जरूर काटेगा। अगर वो बीच में काट रहा है तो आपने ध्यान देना है कि इस हमारे घर के मेंबर में किसके पास ये नेचर है। उसको बोलने से कुछ नहीं होगा कि उसको समझाएंगे बेटा ऐसा नहीं करना, नहीं, उसको सिर्फ आदत डालो कि 2-4 दाने चीनी के पानी पिलाओ डेली, एक रूटीन बना दो। मिश्री हो, मिश्री नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, वो धागे में जो धागे वाली होती है, मिश्री का टुकड़े 2-4 पीस खिला के ऊपर से पानी पिलाओ। धीरे 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 इसका सूर्य ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो बोलते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाओ, वो भी अच्छी चीज है, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, अच्छी चीज है। लेकिन हमारी बॉडी में सूर्य को ठीक करना है तो सूर्य के मतलब मिश्री के या चीनी के साथ पानी पीना है, थोड़ा सा, दिन में एक बार करना है, बस सारा दिन नहीं करना है, दिन में एक बार करना है। इसके 2 फायदे हुए, तो चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा, दूसरा बाल गिरने कम हो जाएंगे। आजकल बाल गिरने की बहुत प्रॉब्लम है सबके साथ। अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं और आपके सामने कोई कम बाल वाला है तो आप समझ जाइए कि ये फ्रस्ट्रेट जल्दी होगा, तो उसको उसी हिसाब से हैंडल करना है। ये हैंडलिंग पॉइंट बता रहा हूँ आपको, कैसे हैंडल करना है लोगों को। मतलब उसका सन कमजोर है, ये फ्रस्ट्रेट जल्दी होगा, शो जितना मर्जी कर ले वो, ये फ्रस्ट्रेट होने वाला बंदा है, ठीक है। तो अचानक से शरीर के अंगों में अचानक से अकड़ना शुरू हो जाए तो सूर्य वीक की निशानी होती है।
इमीडिएट समझ जाओ कि सूर्य कमजोर हो रहा है। या तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ, डॉक्टर को तो जरूर दिखाना है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर से भी पूछो, वो तरीका बताएगा आपको सन को स्ट्रॉन्ग करने का, क्योंकि हर हॉरोस्कोप का अलग अलग सिस्टम होता है जो वो हम डिसाइड करते हैं कि ये उपाय, ये जो मैं चीनी पानी वाला बताया, ये सभी कर सकते हैं, सबके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट से चोरी करते हैं, चाहे टैक्स से रिलेटेड है, चाहे बिजली की चोरी करते हैं, कुछ भी सरकार से चोरी करते हैं, तो भी सूर्य कमजोर होगा। आजकल दिल के ज्यादा जो हार्ट अटैक ज्यादा पड़ रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि हम सरकार की चोरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, या हम बता नहीं रहे, शो नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, दुनिया को नहीं बता रहे हम, हमें पता है, इसीलिए वो बोझ ले नहीं पाता, हार्ट और अटैक आ जाता है। ठीक है, जिसका मैंने देखा है, मेरे अपने एक्सपीरियंस है, मैं इसमें आपके लिए भी वो काम की चीज नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, मेरे मन में आई सूर्य बुध जब इकट्ठा होता है और उस पर किस तरह पोजीशन दिखाता है कि जो बिजली चोरी करते हैं उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं होती, प्लानिंग भी डिस्टर्ब होती है। मैंने 40 to 45 केसेस मैंने पर्सनली रीड किए हैं, उनके घरों में जाके मैंने डिस्कस किया है, तो हमें पता चला कि हाँ, सबके प्लानिंग नहीं कर पाते, वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं मेन प्लैनेट की, जो हमारी जिंदगी में जिसकी बहुत जरूरत है। अभी सारे प्लैनेट की जरूरत ज्यादा है, लेकिन एक प्लैनेट ऐसा है जो बहुत अच्छा प्लैनेट है, सारे प्लैनेट अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा खतरनाक भी है। इसको हम बोलते हैं मरकरी, बुध। सारे शरीर की नसें जो होती हैं वो बुध उसको ऑपरेट करता है, मतलब उसको बुध से देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में डिजाइन किया गया। मतलब ऋषि मुनियों ने इतनी कमाल की चीज की है ना, ये इतनी ज्यादा रिसर्च करके हमें समझ में नहीं आता, पूरा हम पढ़ भी नहीं पा रहे जितना उन्होंने लिखा है, कि इतना आसान किया उन्होंने जिंदगी को, इतने आसान तरीके निकाले उन्होंने कि आपको प्रॉब्लम, उस प्लैनेट को रिलैक्स करने का बड़ा अच्छा तरीका मिल जाता है। सारे शरीर की नसें, बर्ड्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, 10 साल से कम की कन्या जो हमारे उनको उनके पैरों को हाथ बहुत अच्छा करने का तरीका है। हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सिस्टर, मासी, बुआ, बेटी, सब हमारे बुध ग्रह से रिलेटेड होता है। अगर आपके घर में इनसे अच्छा रिश्ता बना सकते हो, इन सब रिश्तों से, जैसे सिस्टर, मासी, बुआ, बेटी, इनसे रिश्ते अच्छे बना के चलोगे, आपका बुध कभी खराब नहीं होगा। और खराब होगा तो इनसे रिश्ते बनाना बहुत चैलेंजिंग होगा, किसी न किसी रिश्ते में जरूर खराब होगा कहीं ना कहीं। और इसका मतलब इंटेलिजेंस होती है ना, वो हर जगह वर्क करती है। और सारी कुंडली में अगर मरकरी अच्छी है, बाकी प्लैनेट थोड़े से वीक है, थोड़े से अप्स एंड डाउन वाले चल रहे हैं, तो आप सर्वाइव कर जाओगे। क्योंकि पढ़ाई में भी इंटेलिजेंस चाहिए होती है, पढ़ाई नहीं कर रहे, व्यापार में भी इंटेलिजेंस चाहिए, हर जगह पे बुद्धि चाहिए। बुद्धि को ठीक करने के बहुत सारे तरीके बताए गए एस्ट्रोलॉजी में, जैसे गाय को ग्रीन कोई पालक खिला दिया, ग्रीन वेजिटेबल खिला दी। अगर हॉरोस्कोप में बुध ज्यादा ही खराब है तो हम बोलते हैं बकरी को चने खिलाओ। अगर हमारा फाइनेंस थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो हमें काली गाय ढूंढनी है और उसको गुड़ खिलाना है। बहुत मुश्किल से मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी, इतना भी नहीं है कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। गाय को किसी भी वेडनेसडे को खिलाना है हरी पालक या हरी सब्जी या फिर चारा, और जो काली गाय को खिलाना है वो फ्राइडे को खिलाना है, वो वेडनेसडे को नहीं खिलाना है। ठीक है, 60% कुंडली में बुध ठीक हो जाएगा इससे। वेडनेसडे को हरी चीज खिलानी है और काली गाय ढूंढनी है तो उसको फ्राइडे को खिलाना है गुड़। जो चापलूस ज्यादा होता है ना, वो भी उसका बुध भी खराब होता है। ठीक है, तो मंदिर में बढ़िया अपनी अपनी कुंडली अगर किसी को देखनी आती है तो जिसका बुध पहले है, शुक्र बाद में है, तो ठीक है। अगर शुक्र पहले है, बुध बाद में है, तो मंदिर में फ्लावर चढ़ाओ, उससे बड़ा रिलैक्स मिलेगा। और अपने घर में फूलों वाले प्लांट्स रखो जितने रख सकते हो। अगर आपके बुध में आप जो मैंने सिम्टम बताया, आपके उस रिलेशन ठीक नहीं है, तो अपने घर से
रबर प्लांट हटा देना, बड़े पत्ते वाले सारे प्लांट हटा देना। और गोल चीजें जैसे होती है, मटका हो गया या वास हो गया, गोल चीज खाली, जिसका पेट खाली होता है, सारी चीजें घर से हटा देना। आपके अंदर फियर कम हो जाएगा, नहीं तो वो फियर बढ़ाना शुरू कर देता है। मरकरी ऐसा प्लेनेट है, ठीक है। और जो जिनका पेट बहुत मोटा होता है मटके जैसा, वो भी बुध होता है, वो भी बुध खराब की निशानी होती है, तो वो कर नहीं सकते। तो उनको ये हरी मतलब प्लांट्स की सेवा करनी चाहिए, हरे प्लांट्स लगाएं, फूल वाले प्लांट्स लगाएं, तो धीरे धीरे उसकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन आंसर ले लें। Yes, sir. Up to you. So I would request, you can please, type in your questions in the chat box. That will make it easier for us to, pick it up. And I have the first question. I would leave it to the person to, I wouldn't like to disclose the identity of the person because I am not be the right thing. Sir, just a moment. देवेंद्र जी, please. खत्म हो गया क्या? नहीं बताओ ना, कोई क्वेश्चन है तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं, मैं क्यों पूछ रही हूँ, जुपिटर, चंद्रमा, मंगल, सूर्य, बुध 5 खत्म हुआ ना? अच्छा, और करने हैं क्या? हाँ सर, और तो करनी है, और क्या कर देते हैं। मुझे बताओ, सारे बता दो। क्या हमारे पास टाइम लिमिटेड है ना, इतना टाइम, मतलब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। वीनस के बारे में बात कर लेते हैं, शुक्र के बारे में। हाँ, शुक्र ने क्वेश्चन किया था, शुक्र का जवाब देना पड़ेगा। शुक्र का मतलब होता है हमारा पार्टनरशिप हाउस, मतलब जो हमारा पार्टनर है, चाहे वाइफ के लिए हस्बैंड है या हस्बैंड के लिए वाइफ है, इनकी ट्यूनिंग का जो पार्ट है, या फिर हमारे क्लाइंट्स, वो भी हमारे पार्टनर होते हैं, तो वहाँ वीनस बहुत मैटर करता है। तो उसको खुश रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो गलत है चाहे सही। अगर खुश रख सकते हैं तभी आप अपने पार्टनर को भी खुश कर सकते हैं, क्योंकि जैसे होता है ना, हम बोलते हैं कि क्लाइंट इज आवर बॉस, मतलब वो कह रहा है वो सही है, सब हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने सैलरी में पेमेंट करनी है काम का, तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। वीनस से रिलेटेड हम देखते हैं बॉडी के ऊपर स्किन, हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, तो हमारा वीनस ठीक नहीं है। हमारे पास स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, तो वीनस ठीक नहीं है। और हमारे घर में लग्जरी कम हो रही है, वहां पर भी वीनस को देखते हैं हम कि ये वीनस से ले रहे हैं। हाँ, वीनस से हम देख रहे थे, नेक्स्ट हम वीनस से देख रहे थे वीनस को स्ट्रॉन्ग करने का उपाय। वीनस बहुत अच्छा होता है। क्रिएटिविटी भी वीनस से देखते हैं हम, अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्टिव ऑरा, किसी को देख के हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये बहुत अच्छा है, मतलब हम जानते नहीं है उसको, लेकिन हमें पसंद आता है वो, तो इसका मतलब उसका वीनस बहुत अच्छा है। जैसे फिल्म स्टार्स होते हैं, या और डेली लाइफ में हमारे कुछ घर में बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, सब बोलते हैं कि जब इससे मिलता है बड़ा मजा आता है, खुशी मिलती है, तो वो ऑरा बहुत पॉजिटिव है। इसको हम न्यूमरोलॉजी में 6 नंबर से देखते हैं। ये इनमें एक खासियत होती है, वीनस जिनका अच्छा होता है, ये अपनी बॉडी शेप पे बहुत ध्यान देते हैं। इनका बॉडी शेप बिल्कुल सिस्टमाइज होगा, मतलब बहुत मेहनत करते हैं उसके ऊपर। ये वीनस प्रधान लोग होते हैं, मतलब उनका जो प्लेनेट है वीनस स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, सारे प्लैनेट्स में सबसे अच्छा स्ट्रांग होगा वीनस, तब वो शेप पे ही ध्यान देगा सिर्फ। और अगर इसको हम 6 से देखते हैं, 2 बार अगर 6 आ गया डेट ऑफ बर्थ में उसकी, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में, जो वीनस वाले लोग हैं, या कोई भी जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 6 आ गया, जैसे 6 जून 2001, तो 6 और जून का 6, 2 6 आ गए, तो जब ये 2 6 आ जाएंगे तो इट मीन्स वो शो ऑफ करेगा, वो बताता है, सबको बताएगा कि मैं ये ब्रांडेड चीज यूज कर रहा हूँ। मतलब जो जेन्युइन, जिसका नॉर्मली बहुत बढ़िया वीनस होगा, वो ब्रांडेड चीजें ही यूज करेगा, वो नॉर्मल चीज, लोकल चीज यूज ही नहीं करेगा। और जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 6 आ गया, हमने देखा कि उनके ना वो शो ऑफ भी कर रहे हैं साथ में, कि मैं ये पेरिस से खरीद के लाया, ये मैं वहां से खरीद के लाया, मतलब लोकेशन बताएगा कि मैंने यहाँ से खरीदा, तो शो ऑफ करेगा, ये मैंने ये इस आर्टिस्ट की पेंटिंग ली, दिखाएगा लोगों को, स्पेशली घर पे बुला के दिखाएगा कि देखो ये मैंने वहां से पेंटिंग लेके आया। तो वो शो ऑफ वाला कॉम्बिनेशन हो गया। अगर यहाँ पर किसी का कमजोर है, वीनस कमजोर होगा, तो वो ना उसकी लैंग्वेज हार्श होगी। Good. So anyone else would like to tell something about himself? Anyone in the group while Devendra ji joins? सर आप बताइए, बजाज साहब। हाँ सर, मैं तो इनका उपाय जानना चाह रहा था स्ट्रॉन्ग करने का वीनस। अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए अब तक, एटलीस्ट पीपल विल कम टू मी। मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, हर तरह की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, प्लस वेल्थ क्रिएशन। अच्छा,
थ्रू म्यूचुअल फंड, LIC, GIC, इंश्योरेंस में सभी कुछ करता हूँ, FDियाँ भी करता हूँ, कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स Okay. प्लानिंग करता हूँ। ठीक है, कुछ भी करना हो तो कर सकता हूँ, सब ऑनलाइन आजकल कर रहा हूँ, सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं प्लेटफॉर्म पे, तो इट्स वेरी इजी। लॉकडाउन में सबने ऑनलाइन कर दिया, मैंने सारी चीज़ें, ठीक है। एक्स्ट्रा मैं सबको दे रहा हूँ फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी है। किसी को भी कराना हो तो काम करा सकते हो, कुछ नहीं, एनीवन। Okay, I think देवेंद्र जी is here. देवेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। आ गई सर, आ गई सर आई थिंक 350 हो गया है, तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। कोई एक ऐसा ग्रह है जिसका बहुत डिस्टरबेंस है, अभी आ जाएगा वो सामने उसको लेकर। तो सर क्वेश्चंस ले लेते हैं, मेरे ख्याल से 350 हो गया है। हाँ ले लो देवेंद्र जी। जी। सर आपने कौन सा ग्रह छेड़ दिया जो आपको आउट कर दिया? वो ग्रह देख लेते हैं अभी। सब ग्रह यही है। सर मैं सर एक चीज बताओ। हाँ सर देवेंद्र जी, अमिताभ जी आ रहे थे तो मैं पहले ही क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ कि सर जिसके 6 3 हो वो क्या करेगा? जिसके 6 3 होंगे वो थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम रहेगा। और जोड़ अलग है ना, 26 मार्च 1966। हाँ समझ गया, मैं समझ गया, संजय जी समझ गया। 3 बार 6 का मतलब होता है थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। अगर टोटल डेट ऑफ बर्थ का 6 आता है तो नेगेटिव कम है। अगर टोटल क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? एक बार आता है किसी का 6 तो सर, हैं? एक सिंगल आता है 6 तो सिंगल 6 अच्छा होता है। अच्छा होता है, सबसे ज्यादा पावर सिंगल 6 में होती है। अच्छा सर मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जो पहला क्वेश्चन है देवेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी। नेम इज ऋषभ। ऋषभ। हाँ, डेट ऑफ बर्थ 23/12/2002। हाँ एक ऋषभ। हाँ 23/12/2002। 2002 टाइम? हाँ, टाइम इज 3:19 AM। प्लेस ऑफ बर्थ? चेन्नई। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज अबाउट व्हिच कैरियर स्ट्रीम ही शुड ये चेंज। हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हाँ, he is there, his father is there, so he wants to know about the career stream. मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा पहले। हाँ सर। पहले इनसे पूछिए कि ये बच्चा इनका सेंसिटिव बहुत है। मैं एक मिनट अनम्यूट कर देता हूँ उनको। अनम्यूट हाँ, मैं अनम्यूट में हूँ। प्लीज। हाँ महेश। He is a very loving and very sensitive child. है ना, बहुत सेंसिटिव है ना ये। ऐसे लोग जो हैं वो मटेरियलिस्टिक भी बहुत अच्छे होते हैं, और इनको ना एक अजीब सा अलग सपोर्ट चाहिए होता है, पुश। ये दूसरों को एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं, अपने डिसीजन बहुत स्लो लेते होंगे। ये ऐसा है? नहीं, वो तो हर चीज पहले ही खत्म करना चाहता है। फिर तो बहुत अच्छा है ये सिस्टम बना के रखने दो। ये टाइम, ये तो बहुत अच्छी चीज बताई आपने। He is very eager to complete his stuff and get a good name. अभी जो इनका जो टाइम स्टार्ट हुआ है ना, इनका जो टाइम है थोड़ा सा एंजाइटी वाला है। फ्यूचर को लेके बहुत चिंता है इनके अंदर। हाँ ठीक है, और अग्रेशन जो है कंट्रोल नहीं कर पाते। ये नोटिस किया है कभी आपने? नहीं, अभी नहीं। अभी लग रहा है कि उनका अग्रेशन कम हुआ है because he's so busy now, so हाँ बिजी है तभी ठीक है ना, नहीं तो इसके अंदर एंजाइटी है, मतलब फ्यूचर की चिंता लेके ना अग्रेशन है। हाँ, और कुड़ बहुत करते हैं ऐसे लोग। स्टेबिलिटी माइंड में बहुत कम रहती है ऐसे लोगों की। अगर डिसीजन फास्ट ले जाए तो इनकी प्लानिंग अच्छी है, मान के चलिए। इनके एग्जीक्यूशन में मेरे को वीकनेस नजर आ रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन प्लानिंग बहुत अच्छी नजर आ रही है। प्लानिंग इनको चाहिए कि 800 ग्राम चीनी स्वीपर को दिलवाओ इनके हाथ से, तो इनकी और बेटर होगी प्लानिंग, कंप्लेंट्स कम हो जाएगी इनके लिए। श्योर। ठीक है, तो इनका जैसे मैंने बोला था ना फ्लावर्स वाला सिस्टम, इनका वीनस पहले है, मरकरी बाद में है, तो इनको फ्लावर्स मंदिर में देते रहने चाहिए। कोशिश करिए अमावस पे, जब बुजुर्गों के लिए हम करते हैं ना, पितरों के लिए कुछ करते हैं, हाँ, अमावस पे जरूर इनके हाथ से फूल चढ़वाइए गणेश जी को। हाँ, ये कुछ लोगों ने बोला ये टीचिंग लाइन में जाएंगे, कुछ बोला मेडिसिन में जाएंगे, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू हियर। इनके लाइन रिसर्च का है, रिसर्च की कोई भी लाइन सूट करती है इनको ना, जो चीज जिसमें हिडन हो ना वो लाइन सूट करती है। मतलब कोई भी चीज बताएं ना किसी को, चीजें छुपा के चलें। जैसे कॉल सेंटर का काम होता है, इसमें छुपाई भी छुपी चीटिंग होती है, थोड़ी बहुत चीटिंग वाली लाइन सूट करती है इनको। सीधे काम कभी सूट नहीं करेंगे इनको। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी और का? हाँ सर, वेलकम जी, वेलकम। There is a question from Mr. R. Nikhil Reddy. Okay.
Date of birth is 7/5/1993. And the time of birth is 6:30 a.m. एक मिनट सर, आप डेट ऑफ बर्थ बताना। हाँ सर, 7/5/1993. 7/5/1993। हाँ 93. ओके, टाइम? Time is 6:30 a.m. प्लेस ऑफ बर्थ? हैदराबाद. हैदराबाद कहाँ पे पड़ा ये? ये सर तेलंगाना ना हो गया। तेलंगाना। हाँ हाँ। ओके, हैदराबाद एपी, आंध्र प्रदेश। हाँ सर, आंध्र प्रदेश। अब नहीं है सर, आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना है वो। तेलंगाना हो गया अब। चेंज हो गया। बता दीजिए, अभी चेंज कर देंगे, हमारे को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये मन का बहुत साफ बच्चा है जिसकी भी चार्ट है ये। He is a civil engineer, so he wants to know about his professional growth and marriage. देखो, इसका जो चार्ट है ये बता रहा है कि इसके जो मैरिज होगी ना अदर कास्ट में होगी। Okay. और लव मैरिज भी हो सकती है, चांसेस पूरे हैं। और फाइनेंशियली बहुत अच्छा चार्ट है ये, और पैसे जोड़ने का इनको शौक भी बहुत है। इनका कौन सा कोई फैमिली मेंबर है यहाँ पे? I think he is himself with Nikhil. अच्छा, निखिल यहाँ पर है। Hi, हाँ हाँ, he is there. Hi, sir. Hi, Can you sir. unmute yourself? Yes. unmute yourself. निखिल, आपके अंदर किस बात का फियर रहता है? होता तो कुछ नहीं है, डर बना रहता है। डर ऐसा कुछ भी होता नहीं है? रहता सर, डर कुछ भी नहीं रहता सर, हाँ, डर कुछ भी नहीं रहता, डर कुछ भी नहीं रहता मेरे को, डर। डर है भी नहीं आपके अंदर? हाँ, नहीं नहीं सर, अभी बहुत बड़ा डिसीजन लेना तो डर आता है बीच में। नहीं सर, नहीं सर, कुछ भी ऐसा नहीं आता। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मेरे को ऐसा लगता है आपका लक हमेशा साथ चलता है, ठीक है। जस्टिस को लेके बहुत सीरियस रहते हो आप, किसी का बुरा नहीं चाहते, और ट्रैवल से हमेशा फायदा होता है आपको। ओके सर, हाँ सर। नोटिस किया कभी? कभी भी नोटिस ऐसा नहीं किया सर। हाँ, जब भी ट्रैवल करते हो एनर्जी चेंज हो जाती है, बहुत पॉजिटिव हो जाते हो आप। हाँ जब हाँ, भी लगे प्रेशर आ रहा है, थोड़ा ट्रैवल कर लो। ट्रैवल पैसे की करना कोई है सर। कमी नहीं है आपका हाँ, सर। भी, मतलब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों में चीटिंग नजर आ रही है। तो कोई भी काम जिसमें, जैसे सिविल इंजीनियरिंग क्या करते हो आप, उसमें चीजें क्लियर नहीं करते हो, अपनी बातें किसी को पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं करते हो, तब आप कामयाब होते रहोगे। हाँ, नहीं तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। अच्छा, हाँ सर, ठीक है, आपका चार्ट ऐसा है। तो जब तक कोई हो ना जाए, प्लानिंग पूरी ना हो जाए, बतानी नहीं है, वो जल्दी हो जाती है, नहीं तो नजर लग जाती है। ऐसे लगता है हमें नजर लग गई। अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक है उस पर सर, वर्किंग करनी है थोड़ी सी। यार और ठीक है सर। अगर फेयर कभी लाइफ में नहीं है तो बहुत अच्छा है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कंफ्यूजन को कुछ नहीं सर। बस ग्रेट है, फिर बहुत अच्छा है, चार्ट आपका बहुत अच्छा है। हाँ सर, ठीक है, बीवी आपको सुंदर मिलेगी, लेकिन अदर कास्ट मिलेगी, हाँ हाँ, ठीक है सर। ऐसा मुझे लगता है। अगर 2022 तक हुई तो हाँ शादी का आपके पास मई 2021 से अक्टूबर के बीच में शादी का पूरा योग है। हाँ सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। कभी कभी पैसे जोड़ने के चक्कर में ना अपनी पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय करना भूल जाते हैं ऐसे लोग। थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को। टाइम लेना सर। जी, नेक्स्ट हाँ, कौन है? Mr. Sanjay Agrawal, date of birth is 26/3/1966. तो संजय जी ने अभी क्वेश्चन किया तो था सर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ सर। सर, बड़ा तंग मैं कर- date of सर birth आपका कैसे अभी कुछ नहीं होगा, आप सर बाद में 1-to-1 करना सर के साथ। I think we'll move on. अच्छा क्वेश्चन मैं संजय जी, बहुत आपका परेशान क्वेश्न। हूँ। सर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। संजय जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नहीं सर। कोई नहीं सर, कैरी ऑन कीजिए दूसरे के साथ। आपका क्वेश्चन दे दो। मैं तो देवेंद्र जी से खुद संजय जी, आपने इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कहाँ ले जाएंगे अब आप? दूसरों को मौका लेने दीजिए ना आप। सर इसीलिए मैंने हाथ जोड़ के सबसे पहले लिखा सर, मेरी तरफ से गिफ्ट देवेंद्र जी को भी बताइए। और इनकी तंबाकू की इंडस्ट्री इनकी है, हॉस्पिटल, मतलब एजुकेशन फील्ड के मालिक हो सर, मालिक हो। अरे क्या सर, मैं अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक करना चाह रहा हूँ। देख के मैं हैरान होता हूँ। सर आपको ट्रैवल करने की जरूरत है अब। नहीं, को ट्रैवल की सर जरूरत- 3 तारीख से सारा कुछ ओपन है। हाँ सर, सर जितेंद्र जी, जी जी सर। Sir, next question is Mr. Mayur Narkhede. 2/7/1987. एक मिनट सर, मयूर Narkhede. जी, क्या डेट ऑफ बर्थ? 2/7/1987. 7/1987। Place of birth is Yaval, Jalgaon.
टाइम क्या बताया? टाइम दिया हुआ सर 9 AM। हेलो, हाँ टक्कर, प्लेस क्या बताया था आपने? मैं यवन। बाद में फोन करता हूँ, तेरा चल रहा है, कॉल चल रहा है। अच्छा ठीक। प्लेस ऑफ बर्थ क्या बताया आपने? अमिताभ जी, प्लेस ऑफ बर्थ। हेलो, सॉरी प्लेस सर। ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताएंगे दोबारा? यवल जलगांव, YAVAL जलगांव। ये कहाँ पर पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, जलगांव, जलगांव डिस्ट्रिक्ट। ओके। यस यस यस। हाँ सर बताइए। आपको गाना सुनने का कितना शौक है? है। है। सेंसिटिव भी बहुत हैं आप। हम्म। अच्छा, आपको गुस्सा कितना आता है? आता है। कंट्रोल हो जाता है लेकिन? हाँ कंट्रोल हो जाता है। आजकल कम हो रहा है, पहले ज्यादा हो जाता था। हाँ अभी तक। ठीक है। आपके ना रिसर्च का नेचर है आपका भी, और अच्छा। बहुत सेंसिटिव है, पानी से बहुत प्यार है आपको। अच्छा। ज्यादातर घूमने जाओगे तो 80% जगह पानी की होती है। करेक्ट। ठीक है ना? तो अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, नॉर्थ और या ईस्ट की वॉल पे कहीं पानी का फाउंटेन लगाओ जो मूवमेंट में रहे हमेशा। अच्छा। ओके। या एक्वेरियम हो, अच्छा। या फिर मतलब आप दिल से ज्यादा काम करते हो, दिमाग कम लगाते हो, कई बार डिसीजन फंस जाता है आपका, करेक्ट। है ना? तो वहां पर हेल्प मिलेगी, पानी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ओके। मेमोरी भी अच्छी होनी चाहिए आपकी। ओके। प्लानिंग में भी थोड़ी सी चीटिंग नजर आ रही है मेरे को, तो चीजों को छुपा के करते हो तो वो जल्दी हो जाती है आपकी, तो ओके। फ्रेंड से कभी फायदा नहीं मिलेगा आपको। ओके। टीचर बहुत अच्छे मिलते हैं आपको, है ना? ठीक है। और अपने लग्जरी जहाँ पर ज्यादा होती है वहां बड़ा रिलैक्स करते हो। करेक्ट। अपने कम चलाया करो, डिक्टेटरशिप बहुत रखते हो आप। जब भी डिक्टेटरशिप आएगी तो हमारी स्पाइन वीक होती है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, स्पाइन हमारी फेम को देखता है, तो थोड़ा सा जिद कम किया करो। मतलब जब भी ज्यादा जिद करोगे ना, करो जिद आप जो करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमर या पैरों में दर्द नहीं आना चाहिए। उसी टाइम एक्सरसाइज बढ़ा दो, ठीक हो जाएगा। तो आपकी डेडिकेशन बदल जाएगी, मतलब रूट बदल जाएगा, सही जगह पे जिद करोगे आप, ओके। नेचुरल सिग्निफिकेट रहिए। और आपके अंदर थोड़ा सा फियर रहता है, एक राइट हैंड की अभी है कि नहीं? यस, यस और नो? यस। हाँ, राइट हैंड की स्मॉल फिंगर में स्टील का छल्ला हमेशा पहनो होल लाइफ। आप देखना कितना डर कम हो गया आपकी लाइफ से। बड़ा सिंपल है। ओके। और किसी का क्वेश्चन है मित्र? सर नेक्स्ट इज मैम है मुनव्वर सुल्ताना आलम, डेट ऑफ बर्थ इज। एक मिनट, मेरे को नाम दोबारा बताएंगे? हाँ मुनव्वर, हाँ, MUNAWER। ठीक है, ठीक जी। क्या डेट ऑफ बर्थ? 25/5/1972। टाइम? 10:10 AM। 10 AM? हाँ 10:10। 10:10, ओके। प्लेस इज जबलपुर, जबलपुर, MP। MP, yes. Ma'am, can you unmute yourself and ask the question? हेलो। हाँ मैम, can you ask the question? हाँ, मुझे चेन्नई शिफ्ट होना है अभी कुछ दिनों में, तो क्या मैं चेन्नई शिफ्ट हो जाऊं? और लॉकडाउन की वजह से मैं अटकी हुई हूँ ऐसे 6 महीने से। हाँ, नहीं जा सकते हैं, अभी बहुत अच्छा टाइम है जाने का, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। अभी अच्छा हुआ कि मार्च तक नहीं गए थे, मार्च से पहले जाते तो लोकेशन अच्छी नहीं आ रही थी, अभी लोकेशन अच्छा। अच्छी आ रही है। आप बाल की खाल बहुत निकालते हो ना? हाँ, नहीं इतनी ज्यादा भी नहीं, मगर मुझे तमिल लैंग्वेज लर्न करना चाहिए क्या? कोशिश करो, क्वेश्चनिंग कम करो। अपनी फैमिली में क्वेश्चंस बहुत करते हो आप, मेरे से तो नहीं कर रहे। अच्छा। फैमिली में करते हो आप। जी। तो थोड़ा सा मतलब उससे क्या होगा ना, स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। जी। हमें हमारी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। जी। है ना? जी। हाँ, इंट्यूशन बहुत अच्छी है आपकी, कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन करना ना रिसर्च का नेचर होता है। जहाँ पर रिसर्च नहीं करनी वहां पर रिसर्च करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। जी। ठीक है ना? आपको भी हमेशा थोड़ी तारीफ कर दे बंदा तो कुछ भी करवा ले आपसे। अच्छा, मेरा छूट गया है। तारीफ करता है कोई? नहीं, थोड़ी बहुत, मतलब कभी कभी। हाँ, मतलब तारीफ ज्यादा करेगा ना तो आपसे कोई मर्डर भी करवा सकता है। अरे आपका रिसर्च बहुत अच्छा है, जी। थोड़ा वर्किंग बढ़ाओ। आपका क्रिएटिविटी भी बहुत नजर आ रही है आपके अंदर। जी। विन मिलती है आपको, जिस काम में भी आप हाथ डालते हो ना, जिस काम के पीछे पड़ते हो आप, विन मिलती है। जी। 777 मतलब डेट ऑफ बर्थ में 777 आ रहा है, तो ये
और आप ना अनप्रेडिक्टेबल भी होती है। आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो तो खाना थोड़ा ज्यादा मंगाते हो ना? नहीं, हाँ ज्यादा हो जाता है कभी कभी। हाँ, वेस्ट जाता है, जी जी। उससे घर बचो। में वेस्ट बहुत होता है, घर में वेस्ट बहुत होता है। हाँ, आपका नेचर है ना, आपको टेबल भरी भी चाहिए, सब कुछ 2-3 एक्स्ट्रा चीज बननी चाहिए, कोई बात नहीं, अच्छी लगती है आपको, फील अच्छा आता है, खर्चा करके बड़ा मजा आता है आपको। आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे एक्सपेंसेस बहुत रहते होंगे। जी जी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम जी अच्छा। जी। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी। So we have next question from Mr. Jitendra. सर उससे पहले मेरा क्वेश्चन है, आपने मेरा क्वेश्चन छोड़ अभी अभी करते हैं मैम, आपके आप अलग से कर लेगा 1 to 1. There are a lot of people who, sorry, I'm sorry, but you know, there are a lot of people who joined in from outside. अच्छा Just try to, Okay. you know, who are getting to know with कोई नहीं Vinda ji for the first time. कितना टाइम है? So Mr. Jitendra is there. Can you please unmute yourself? Sure, sir. Yeah. So his date of birth is 15th August 1984. जी, टाइम? Time is 11:45 p.m. Place Hapur. That's in UP. वो तो मैं जानता हूँ शायद। हाँ, बगल में ही तो रहते हैं सर, नोएडा में ही तो रहते हैं बगल में। उनकी डिटेल तो पहले थी मेरे पास, चलो टाइप कर दी, कोई बात। ठीक है। कैसे हैं जितेंद्र जी? आशीर्वाद है, कृपा दृष्टि बनाए रखिए सर। ऊपर वाले की इच्छा। जी बताओ क्वेश्चन आपका। सर वही फाइनेंशियल इश्यूज, कैसा है भविष्य आगे? 15 अगस्त डेट ऑफ बर्थ है, मतलब लग्जरी की लाइन तो हमेशा साथ जुड़े रहेगी आपकी, ठीक है। आपका सैटर्न भी बहुत अच्छा है, मरकरी भी एवरेज है, मतलब बुरा नहीं है, ठीक है। आपको भी मंदिर में फ्लावर्स देने चाहिए। ओके सर। चांदी की चेन पहनी हुई है आपने कि नहीं? चांदी की नहीं, गोल्ड की चेन पहनी हुई है सर। चांदी की चेन पहनो आप। अच्छा। आपके ना अग्रेशन है, प्लानिंग में अग्रेशन हटेगा, रिलैक्स होकर अच्छे डिसीजन ले पाओगे आप कभी भी ना, लोग आपका मिसयूज बहुत करते हैं, कम हो जाएगा। ऐसा लगता है आपको? जी हाँ, तो आपको जो है ना, आप कभी रिटायर नहीं होंगे लाइफ में, आपका चार्ट है ये, क्योंकि आप लोगों की इतनी हेल्प कर दोगे अपनी जिंदगी में कि आपके हाथ पैर सही चलते रहेंगे, उसमें बुराई नहीं है जी। क्योंकि पेंडिंग कर्माज हैं वो देने ही पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे पूरे। सर जैसे कि अब ट्रैवल का ही बिजनेस है, और ट्रैवल अभी लगता है कि 8-10 महीने साल भर मेरे ख्याल से शायद नहीं होएगा। देखो मेरे हिसाब से 2021 जो है ट्रैवल की का ईयर है, 5 नंबर आ रहा है 2021, तो ये मेरे को तो लगता नहीं कि कुछ ऐसा दिक्कत आएगी। हाँ, आपको वर्क करना पड़ेगा, हालात ऐसे आ गए कोविड की वजह से, तो यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि ट्रैवल में कैसे आप इसको निखार सकते हैं, इसमें से कुछ और क्या निकाल सकते हैं। बट ट्रैवल है मेरी लाइफ में, ट्रैवल ही बिजनेस है। ट्रैवल की लाइन सूट करती है, ऐसा नहीं है, नुकसान का आपने कमाया है इसमें, ठीक है, लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से ट्रैवल का टाइम कम हो गया है। अब मेरे को दिख रहा है अब मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला काम मिलेगा, बैठने वाला काम नजर नहीं आ रहा। बैठ के काम नहीं करोगे अब आप, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ओके। बैठने के काम से फायदा नहीं होगा, मतलब करोगे नहीं, मतलब फायदा ही नहीं होगा। हम संभावना नहीं देख रहे, हम सॉलिड चीज देख रहे हैं। हमें दिख रहा है कि अब फायदा नहीं होगा बैठ के काम करने का, अब आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी। जी हाँ, थोड़ा सस्पेंस होगा लेकिन फाइनेंस आएगा, उसकी समस्या नहीं है, लेकिन लो फील के साथ आएगा। अभी फीलिंग लो चलेगी, आपकी फीलिंग अच्छी होगी जुलाई 2021 से जी, लेकिन तब तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बेस बनाना पड़ेगा। बेस बन जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक फॉरेन जाने के भी चांसेस है उस टाइम 2021। ठीक है। Sangeeta Datta, and I think she wants to know about her daughter. Okay, thank you, Jitendra ji. Please mute yourself. There's a question from Sangeeta Datta, and I think it is a. Ananya is in class 10th. अच्छा, अनन्या का डेट ऑफ बर्थ बताइए। She would be in which line? कौन से में जाए तो बेटर रहेगा? She has joined with me. अनन्या का डेट ऑफ बर्थ बताओ। 30/11/2005. टाइम ऑफ बर्थ 6:54 p.m. Delhi. प्लेस ऑफ बर्थ Delhi. इसको टीचिंग की लाइन का कैसा इंटरेस्ट है? हाँ जी, टीचिंग का कैसा इंटरेस्ट है इसका? टीचिंग
नहीं है। छोटे बच्चों को पढ़ाने का कितना शौक है? नहीं है। नहीं है, तो इसको शो ऑफ की लाइन डालो, कोई भी शो ऑफ, जिसमें शो ऑफ हो वो लाइन सूट करती है इसको। जिसमें शो ऑफ हो। हाँ, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग होती है, शो ऑफ, जिसमें शो ऑफ हो। जिसमें शो हो। हाँ, अच्छा। शो ऑफ मतलब दिखावा ज्यादा हो। ओके। दिखावे वाली लाइन सूट करती है इसको। इसकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये इसके मन में जो आ रहा है वो करने दो इसको। ओके। इसकी ये क्या बताती है, क्रिएटिविटी तो नजर आ रही है मेरे को, लेकिन ये क्या चाहती है बच्चा इसके बारे में, इसकी इंट्यूशन ठीक है, जिसकी इंट्यूशन ठीक होती है उसकी लाइन अपने आप निकलती है, उसको किसी के एडवाइस की जरूरत नहीं होती। ओके, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये ना इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो एजुकेशन से रिलेटेड लाइन में नजर आता है मुझे। ओके। लेकिन इसको प्रेशर नहीं देना, इसके मन से ही निकालना है। इसको फूड की लाइन सूट नहीं करेगी, ठीक है। और इसको टीचिंग की लाइन सूट करती है, इसको कंसल्टेंसी की लाइन सूट करती है, और इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। जिसमें प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों हो वो लाइन बहुत सूट करती है। आर्किटेक्ट हो गए, इंटीरियर डिजाइनर होगी, बहुत सारी लाइनें निकलती हैं, सारी शो ऑफ वाली हैं। ओके। बहुत सारी लाइनें हैं इसमें, इसकी कोई टेंशन मत लो आप। ठीक है। बस इसका फ्रेंड सर्कल कितना है, 2 फ्रेंड जरूर होते हैं इनकी लाइफ में। हाँ। नोटिस किया है कभी? 2 फ्रेंड हमेशा 2 फ्रेंड होंगे इनकी लाइफ में जो साथ साथ चलते हैं हमेशा। बहुत होंगे फ्रेंड्स तो, लेकिन 2 पक्के होंगे जिनको सब बातें इनकी शेयर करते हैं आपस में। फ्रेंड लाइफ है शाते। और इनके अंदर अर्धनारीश्वर का रूप देखते हैं हम, शिव का। मतलब कभी कभी ये बहुत सॉफ्ट हो जाती है, कभी कभी ये बहुत स्ट्रांग हो जाती है। नोटिस किया कभी? हाँ, तो ये हर हॉरोस्कोप में भगवान ढूंढते हैं, इसमें हमें अर्धनारीश्वर नजर आते हैं। ओके, ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लो आप। इसका पढ़ाई हो जाएगा ना, क्योंकि जैसा फाइनेंशियल कंडीशन हम लोगों का चल रहा है अभी, उससे तो डर लग रहा है। तो इसका जो टाइम है ना, अप्रैल 2021 तक बहुत अच्छा है। उसके बाद अप्रैल से लेके और जुलाई तक थोड़ा सा टफ टाइम है, उसके बाद नॉन स्टॉप बढ़िया है। ओके, चिंता नहीं करना, बस डेडिकेशन बनाए रखना है। इसको स्पोर्ट्स एक्सरसाइज करवाते रहना, इसको बोलना एक्सरसाइज जब भी नेगेटिव एक्सरसाइज करनी है, फिट हो जाएगी ये, माइंड सेट हो जाएगा। ठीक है, माइंड सेट हो जाएगा, जब ये कंफ्यूजन नहीं आएगा कभी भी। इसके ना चार्ट में है डेडिकेशन है, लेकिन वो लैक कर जाता है। जब ये बॉडी से पसीना निकालेगी ना, तो डेडिकेशन ट्रैक पे आ जाएगा। किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है इसको। ये स्पोर्ट्स की लाइन भी बहुत सूट करती है। अगर थोड़ा जल्दी पूछते तो स्पोर्ट्स की लाइन दे देंगे। इसके तो पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, जिसलिए डांस वगैरह स्पोर्ट्स सब बंद करवा देना पड़ा है। चलो वो जो हो गया छोड़ दो, ईश्वर की इच्छा है, ठीक है। लेकिन पसीना निकाले, कुछ वॉकिंग करे, चाहे वॉक करे पार्क में। ओके, भाग नहीं सकती, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पसीना निकालेगी उतना अच्छा होगा इसके लिए। ठीक है, ठीक है। केतु डिस्टर्ब है इसलिए पैर में लग गई है, कोई बात नहीं। केतु को ठीक करने का तरीका है, डॉग्स के अगर पैर में चोट ज्यादा है, सीवियर है, तो इसको बोलो डॉग्स के पास थोड़ी देर खड़ी रहा करे, कुछ खिलाए उनको। डॉग्स को उसका ऑरा, डॉग की सेवा। ठीक है, सनसेट के बाद। लेकिन इसका कार्टिलेज का प्रॉब्लम निकला है कि सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, इसलिए उसका पैर मुड़ जाता है बार बार। हाँ, तो कोशिश करो इसको एक घर में पालो कुत्ता। घर में कुत्ता पाले? अच्छा, पहले तो अपना जॉब ठीक होए तो पालो। मुश्किल भाग्य लेके आता है, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है, लेकिन ये होगा कि वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं। जैसे वो गुजर जाए तो नया जरूर लाना 10 दिन के अंदर, क्योंकि केतु डिस्टर्ब है ना, तो वो ऐसा होता है। ठीक है, पहले तो हम डरते हैं, ला ही नहीं सकते। ले आए तो वो हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि इसको ठीक करने, काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इसको। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू, वेलकम। हाँ जी, हो गया जी, सब हो गया। I think there are some people, there is Ujjwal, but I am not clear about your question. If you can just give the specific details, I can put across the question. इसको वाइंड अप करें, टाइम हमारा। हाँ, we have already exceeded. हमारा टाइम का भी चक्कर है। So, Devendra ji, what I will do is this: I will take the last question from, I think Miss Sandhya Rana. She had asked the question a long time back. Sandhya Rana. It is, हाँ जी, it is 2nd April 1981. 1981. 2nd April 1981. Time is 5 p.m. Place of birth is Delhi. 1981 बताया ना? हाँ सर, 81. संध्या जी, आपका चार्ट है ये? हाँ जी, हाँ जी।
आप किसी को भी समझाते हैं बहुत डिटेल से समझाते हैं? जी फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाते हो? ये तो नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छा है। पेशेंस पेशेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपके सिर या चेहरे पे कोई चोट का निशान है? कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, इतना टाइम मतलब है। आपका पेट कैसा रहता है? हाँ वहाँ वो है प्रॉब्लम, थोड़ा अपसेट है, कोई बात नहीं, रहता है कभी कभी बीच में। कोई बात नहीं। आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। क्वेश्चन बताइए। जी आप परफेक्शनिस्ट हैं, आप परफेक्शन की तरफ चलते हैं, कंप्रोमाइज बहुत जल्दी नहीं करते। ठीक है, आपका क्वेश्चन बताइए। जी एक तो प्रॉपर्टी रिलेटेड, लाइक व्हेन वुड बी द चांसेस ऑफ न्यू हाउस? प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी तो दिख रही है मुझे। रेजिडेंशियल? मतलब या तो फिर ऐसा हाउस होगा जिसमें कमर्शियल भी यूज हो सकता हो, ऐसा कुछ। कमर्शियल है, रेजिडेंशियल का कुछ अटका हुआ है तो उसके लिए पूछ रही हूँ। आई हैव इन्वेस्टेड ऑलरेडी। हाँ बस ठीक है। शिफ्टिंग इज हाँ। जुलाई 2021 से लेके जुलाई से सितंबर के बीच में एक बार मौका मिलेगा, उसके बाद मई 2022 से लेके अक्टूबर 22 के बीच में मौका मिलेगा। ओके श्योर शॉट है, बन जाएगी प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी कम से कम बनाओगे आप। जो ओके। और प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स कैसे हैं? दो आई एम ऑलरेडी इनटू प्रोफेशन बट आपका जो चार्ट बन रहा है ना, उसके हिसाब से मल्टीटास्किंग नजर आ रही है मुझे। एक काम में तो दिमाग नहीं चल रहा, बहुत सारी जगह चल रहा होगा। ओके। चल रहा है कि नहीं? हाँ एचआर प्रोफेशनल, बट यू कैन से दैट इन्वॉल्व विद एवरीथिंग। हाँ मतलब बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। एक जगह से इनकम नजर नहीं आ रही, 2 जगह से ज्यादा इनकम नजर आ रही है जो आगे जाके बनेगी, ऐसा स्कीम चल रहा है। बस अभी क्या है, आर्गुमेंट्स कम करो। ओके जैसे मैंने बताया था, 2-4 दाने चीनी के खा के पानी पीना है, ओके। तो वो करते रहो। और 6 कंजकों को फ्लेवर्ड मिल्क पिला देना, ओके है ना। इसको करके देखना, अगर रिजल्ट आए तो मेरे से बात करना, फिर मैं सारी रेमेडीज दूंगा। तब आपका फियर भी निकल जाएगा, स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। एक्शन ठीक है, लेकिन अभी आपका शनि की स्टार्ट हुई है, ठीक है। 7.5 हेल्थ का कैसा है आगे का? अच्छा है फ्यूचर आपका? नहीं हेल्थ में। हेल्थ में पंगा है। हेल्थ में पंगा रहेगा अभी। हेल्थ में पंगा रहेगा, सस्पिशियस है, ठीक है। तो ये एवरेज ही रहेगा, थोड़ा वो सस्पिशियस चलता है आपका। चलेगा, अब चलेगा। ये मई 2020 अभी से ही स्टार्ट हुआ है जस्ट। ओके। हाँ थोड़ा सस्पिशियस हो गया ये, तो आप चीनी पानी करो। ओके। अगर वो कंचको वालों को करने के बाद देखना कुछ अपॉर्चुनिटी निकलती है तो मेरे से बात करना, मैं आपको सारी रेमेडीज दूंगा। ऑफ कोर्स चार्ज लूंगा मैं उसका, लेकिन आपकी लाइफ में काफी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। नसों से रिलेटेड दिक्कत नजर आ रही है मुझे। किससे? नसों से रिलेटेड। हाँ है कुछ, एक माइनर इशू है। जी जी, कोई दिक्कत नहीं। Okay, thank you. So thank you so much. Actually, we have exceeded the time by almost 20 minutes, and I'm really sorry we are not able to take all the questions. ब्रेक आ गया था, वो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया था। And we are not able to. No, we exceeded the time by almost 20 minutes. We are not able to take all the questions. I'm really sorry for that. But I have given Devendraji's number here. It is, you can still note down, 98114 443366. It is also available in the chat. And thank you so much for being with us. And especially big thanks to Devendraji. He's so perceptive and he's such a humble person. He always answers all the questions. But because of time limitations, we are not able to take all the questions and give all the answers. So you can please connect with him whenever you get time, and you can discuss with him the problems. Thank you so much, Devendraji. And we look forward to having you with us once again. Bye bye. Devendraji, wonderful. Session was wonderful. Thank you so much. Thank you, Devendraji. Thank you.